everyone, welcome to World Student Scope. I am Shikha here, your English educator. So our today's topic is articles. This is really very interesting as well as very common topic, articles of English grammar. So the main points that we will discuss today in this lecture are articles. After that we will do kinds of articles, that how many types of articles are there. After that we will do rules of using the articles, where we can use these articles, rules of using indefinite as well as rules of using definite articles. After that we will do omission of articles, that where not to use the articles a and the, and after that assignment test will be there. Now articles, what are articles? The words a, an and the are called articles. अब articles क्या होते हैं? तीन होते हैं, a, an and the, इनको हम articles बोलते हैं. Articles are basically a type of determiners. अब जो articles होते हैं they are basically a type of determiners. ये determiners होते हैं. The term determiner covers several classes of words. अब ये जो determiners हैं ये बहुत several classes of words को covered up करता है, which includes definite and indefinite articles, जो कि definite और indefinite articles को भी cover up करता है. Later on we will comes to know what are definite and what are indefinite articles. Now determiners identify or it specify. अब जो determiners हैं ये identify करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि specify करते हैं noun को in various ways. किस तरह से वो specify करते हैं noun को in a various ways? For example, by making it definite. एक चीज़ को definite बना के, definite means where we will use the word the article the, and the child. For example, we will say the child हो गया definite article. Indefinite article, अगर हम indefinite की बात करें तो उसमें आ जाता है a child. So indefinite में a child हो जाएगा. और we can use it by indicating quantity और amount. हम इसको indicate कर सकते हैं उसकी quantity या उसके amount को बारे में भी बता के. Many, there, some, कि यहाँ पे there are many children, there are some children, तो उस चीज़ को उसकी quantity बता के कि there are 4 children और 5 children, तो उसकी quantity को बता के. Next comes to kinds of articles. अब हम articles के kinds के बारे में पढ़ लेते हैं. So there are basically two kinds of articles. First one is definite articles and second one is indefinite articles. दो types के articles होते हैं, definite and indefinite articles. Firstly, let's read about indefinite articles. सबसे पहले हम indefinite articles के बारे में पढ़ेंगे. So what are indefinite articles? Indefinite articles a और an. अब indefinite articles वो होते हैं जिसमें a और an का यूज होता है. So a and an. It doesn't point to a specific particular or to a specific person, specific animal, place or thing. अब ये articles indefinite articles वो होते हैं जो कि किसी भी specific चीज़ को रेफर नहीं करते हैं, एक particular चीज़ को रेफर नहीं करते हैं. Like अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को हम रेफर नहीं कर रहे हैं तो वो इंडेफिनेट में आएगा. कोई स्पेसिफिक एनिमल नहीं है, प्लेस नहीं है, थिंग नहीं है. अगर स्पेसिफिक नहीं है तो इट मीन्स कॉमन में आएगी वो चीज़. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन एंड ऑर्गेनाइजेशंस. आई थिंक देयर कुड बी अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉमन में आ जाता है. सो मैन हो गया, ये भी कॉमन में आ गया, स्पेसिफिक नहीं है. एन ऑर्गेनाइजेशन and an egg. So indefinite articles कौन से होते हैं जिसमें a and an का यूज होता है. And those who not refers to any specific or any particular object or any particular name, any particular person or place. Next is uses of the indefinite articles. Now next comes to the uses of indefinite articles. अब हम indefinite articles की uses के बारे में पढ़ेंगे कि indefinite articles को हम कहाँ use कर सकते हैं, where to use that indefinite articles. So indefinite articles a and an are used
बिफोर काउंटेबल नाउन्स, कि काउंटेबल नाउन से पहले हम इसको यूज करते हैं ए एंड एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स को. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट रूल. एन इज यूज्ड बिफोर वोवल्स. As we know, there are 5 vowels in English, namely A, E, I, O, U. So this A, E, I, O, U is our vowels in English. तो ये हमारे A, E, I, O, U हमारे vowels हैं. तो it means कि जो N है वो vowel से पहले यूज होगा. मीन्स अगर कोई वर्ड गिवन है हमें vowel लेटर में, सी इन एलिफेंट E इज अ vowel, E हमारा vowel है, तो अगर vowel है तो उससे पहले हमारा क्या यूज होगा? N. अब ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फर्स्ट वन इज बैट. अगर हम बैट देख रहे हैं, बी इज अ वोवल और अ कॉन्सोनेंट, इट्स अ कॉन्सोनेंट. अब बी जो है हमारा वोवल नहीं होता, बिकॉज वोवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू. तो ये तो बी है, सो मीन्स इससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए क्या आएगा? ए विल बी यूज, बिकॉज बी इज नॉट अ वोवल हियर. अगर हम यहाँ एलिफेंट की बात कर रहे हैं तो वी कांट राइट ए एलिफेंट. अगर हम इसको ए एलिफेंट लिखेंगे सो इट विल बी रॉन्ग, तो ये गलत हो जाएगा. वी विल राइट एन एलिफेंट बिकॉज ई इज अ वोवल. अगर वोवल है तो वोवल से पहले जो क्या आएगा हमारा? एन विल बी यूज्ड. सिमिलरली लाइक दैट अ ग्लास. अगर हम ए ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं, जी जो है हमारा वोवल नहीं है, इसलिए हमारा क्या यूज होता है? ए. एन एप्पल. अब एप्पल ए जो है हमारा वोवल साउंड होती है, ये वोवल है तो इसलिए क्या यूज होगा? एन विल बी यूज्ड बिफोर एप्पल. ए मैन. अब मैन है तो एम इज नॉट अ वोवल, इट्स अ कॉन्सोनेंट, सो ए विल बी यूज्ड. एंड एन इंजन. एन इंजन इज अ वोवल, सो एन विल बी यूज्ड हियर. अ हैट, एन ऑर्गन, अ प्लेस, एन ऑफिस. See, here are a lot of examples given to you on the screen. You can see here. Some are with A and some are with an. Okay. So जो हमारे indefinite articles होते हैं जो कि vowel sound होती है, अगर vowels हमारा use हो रहा है, जैसे elephant है तो E हमारा vowel है, तो उससे पहले हमारा फिर an use होगा. अगर vowel नहीं है तो फिर हमारा use होता है A. All right. Now second is A and an are used according to the sound of the noun. अब second of all पहले हमने ये पढ़ा कि जो vowel sound होती हैं उससे पहले हमारा an यूज होगा और जो consonant होंगे उसके लिए हमारा a यूज होगा. बट हमें ये बोला जा रहा है कि A and an are used according to the sound of the noun. अब नाउन के साउंड के अकॉर्डिंग ही हमारा ए या एन यूज होता है, बिकॉज सम एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर इन आर्टिकल्स. वी यूज ए व्हेन वी हैव अ कॉन्सोनेंट नाउन. अभी तक हमने यही पढ़ा कि हम ए यूज करेंगे व्हेन वी हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड. जब हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है तो वी विल यूज ए बिफोर वी प्लेस द आर्टिकल. आर्टिकल को प्लेस करने से पहले. अ हाउस. अब हाउस है, ये कॉन्सोनेंट हो गया, सो एच के पहले क्या आ जाएगा? हाउस के पहले क्या यूज होगा? आर्टिकल ए विल बी यूज. सिमिलरली लाइक दैट मैच स्टिक. अब मैच स्टिक है तो एम क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, एम इज अ कॉन्सोनेंट, सो ए विल बी यूज. गेट, जी इज अ कॉन्सोनेंट, सो ए विल बी यूज. अ वॉल, अ विंडो, अ शू, अ कप ऑफ कॉफी, अ टेबल, अ बैग. So you can see here where to use A and where to use an. Next is third rule is there are some exceptions of nouns that start with the vowel. अब यहाँ हमारे कुछ exceptions भी होते हैं that start with the vowel but we put an in front of them as an articles. अब कुछ ऐसे भी होते होंगे जो कि vowel sound से नहीं start करते but still we use an there. Look at the examples. A union. अब देखो A, E, I, O, U ये तो हो गए हमारे vowels. अब ये हमारे सारे vowels हैं तो ये U भी तो vowel हुआ, ये भी तो vowel sound है but still we use A here. Next is a university. U भी हमारा vowel है but still we use A here. After that 1 rupee note, a European,
a one-eyed person. So we place a before that vowel sounds. अब vowels तो हैं but still we are using a before that. So the words like union, the words like university, European starts with vowels. अब हमने देखा था कि ये जो words हैं हमारे vowel से start हो रहे हैं. E and U, इनमें कौन से vowels का use हुआ है? E and U. See, U, this one U, E. तो ये हमारे U and E से start हो रहे हैं, but they have a sound of U in them. University, यूनिवर्सिटी जब हम प्रोनाउंस करते हैं सो यू नहीं होता, वो यू बन जाता है, YOU. सो ये है तो हमारे वोवल साउंड से स्टार्ट हुए थे. इट स्टार्ट विद द वोवल्स E एंड U बट दे हैव अ साउंड ऑफ U इन दैम. लेकिन इनमें कौन सी साउंड है? U की, YOU. तो U की साउंड है लाइक यूनियन, लाइक यूनिवर्सिटी, लाइक यूरोपियन. So they are having U sound in them. So the sound of U is considered to be a consonant sound. अब जो U की sound है वो किस तरह से consider की जाती है? As a consonant sound. उसको consonant sound की तरह consider किया जाता है. This is the reason we used A in front of them. यही reason था कि हमने उनके आगे क्या use किया? A. Now the words like a one-eyed person and 1 rupee note have O. अब one-eyed person जो है, one भी हमारा vowel है, A-E-I-O-U में O is a vowel. Here also 1 rupee note में भी O is a vowel. So we have a O which is a vowel in front of them. अब इनके आगे तो vowels लगे हुए थे, but we still used A article before them because it has a sound of W. वो इज कंसीडर्ड एज अ कॉन्सोनेंट, और अगर वो है तो इसको कैसे कंसीडर किया जाता है? एज अ कॉन्सोनेंट की तरह कंसीडर किया. दीज आर द एक्सेप्शंस दैट वी आर डूइंग. सो वी यूज ए इन फ्रंट ऑफ देम, इसलिए हमने इनके आगे क्या यूज किया? ए. नाउ फोर्थ वन, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस वी यूज्ड. अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, सब में ऐसा नहीं होता कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो उससे पहले हम ए यूज़ करेंगे और अगर वोवल साउंड होगी तो उसके पहले हम एन ही यूज़ करेंगे. सम एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर. सो हियर आर फ्यू एक्सेप्शंस. वी यूज्ड ए फॉर सम अनकाउंटेबल नाउन्स एज वेल. हम ए भी यूज़ करते हैं, जो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके लिए हम ए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नमी कॉट अ कोल्ड. हम नाउ अब ये जो उसको कोल्ड हुआ है, वी कांट मेजर दिस, तो ये मेजर नहीं हो सकता है. सो वी आर यूजिंग हेयर ए. सो ये अगर हम इसको मेजर नहीं कर सकते तो क्या हो गया? अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल नाउन हो गया विच वी कांट काउंट. तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम मेजर नहीं कर सकते. तो नमी कॉट अ कोल्ड, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ए. Don't make a noise, students. अब now we can't even count this. Don't make a noise, students. तो हम इसको भी काउंट नहीं कर सकते. So this is also uncountable. So this also comes under uncountable nouns. So don't make a noise, students. So here also we will use A. What appeared on after 5 years. अब यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया? A. So these were the exceptions जहाँ पे हम uncountable nouns आ जाते हैं which we can't count, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं? A. Next is, fifth is, an article is used for countable nouns. अब जो आर्टिकल्स है हमारे काउंटेबल, एंड जो एन आर्टिकल जो होता है हमारा काउंटेबल नाउन्स के लिए हम यूज करते हैं फॉर दैट कंसिस्ट ऑफ वोवल्स. जब वो वोवल से स्टार्टअप होते हैं, जब वो वोवल से स्टार्ट होंगे, बिगिन होंगे, तो उसको हम मीन्स एन यूज कर सकते हैं. एन आर्टिकल. वोवल्स A-E-I-O-U. फॉर एग्जाम्पल, एन एग. वी कैन मेजर कि एक एग है, एन एग. सो दिस इज काउंटेबल. ये तो हमारा काउंटेबल हो गया.
सो इसके आगे क्या आ जाएगा हमारा एन प्लस वोवल साउंड इज देयर, वोवल साउंड भी है, इज वोवल, सो इसलिए हमारा क्या यूज हो गया एन, वोवल साउंड थी प्लस ये क्या थे हमारे काउंटेबल नाउन्स. नेक्स्ट इज एन ऑस्ट्रिच, एन एनवेलप, हियर ऑल्सो वी विल यूज एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, an orange, an X, an inkpot, an uncle, an interesting movie. So you can see here all the letters are starting with the vowel sound. O, E, U, A, O, A, I, U and I. These all are vowels. A, E, I, O, U. So these all are vowels. So we will use here an because they are having a vowel sound. All the above nouns are singular countable nouns. अब ये जो हमने जितने भी पढ़े हैं सिंगुलर है, मीन्स एक चीज़ है, सिंगल थिंग है. एन एग, अब यहाँ पे एक ही एग है, वन ऑस्ट्रिच इज देयर, वन एनवेलप, वन अम्ब्रेला, वन एप्पल. काउंटेबल एज वेल एज सिंगुलर. ये जो नाउन्स हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं. सिंगुलर होते हैं वन, प्लूरल होते हैं मोर देन वन, 2, 3, 4, इट कुड बी 5 और 6. तो कितने भी हो सकते हैं. सिंगुलर होते हैं ओनली वन, दैट रेफर्स टू ओनली वन. एंड हैव अ वोवल इन देम. अब इनमें वोवल भी था, वोवल भी इनमें स्टार्टिंग से इनमें वोवल था. दिस इज द रीजन वी यूज एन एज द आर्टिकल. एंड यही रीजन था कि इनमें हमने एन का यूज किया है, एन आर्टिकल का, क्योंकि ये काउंटेबल भी थे प्लस ये जो है स्टार्ट भी हो रहे थे किससे, वोवल से. Next is we use an in front of them as well. अब हम यहाँ पे an use करते हैं. As of now it is considered to be in the family of vowels. अब ये भी consider करते हैं as in the family of vowels. When we say h, it sounds of a, o and o. a और o की आवाज आती है, which are आर्टिकल्स, जो कि आर्टिकल्स होते हैं. लाइक नाउ वी यूज एन आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ वर्ड्स. अब हम आर्टिकल्स यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ वर्ड्स दैट आर स्टार्टिंग विद एच. अब एच जो है, एच इज नॉट अ वोवल. एज वी ऑल नो एच इज नॉट अ वोवल. अब जो एच है हमारा वोवल नहीं होता है, but still we are considering it as a vowel because it have a vowel sound, क्योंकि इसमें vowel sound है. For example, an are, an honorable leader, an honest child, an heir, an herb. अब सी, अब यहाँ पे हमारा क्या साउंड होती है, a और o. and r, we are saying r. so r जो है, तो r जो है वहाँ पे हार नहीं बोलेंगे, एच जो होता है हमारा साइलेंट होता है इसमें, इसलिए फिर कंसीडरिंग इट एज आर. ए और ओ, ए एंड ओ की अगर हमारी साउंड आ रही है, और ए एंड ओ जो है वो हमारे वोवल्स भी हैं, सो ये हमारे वोवल्स भी हैं और इनमें ए और ओ की साउंड भी आती है, इसलिए वी आर कंसीडरिंग इट एज अ वोवल. एंड आर, एंड ऑनरेबल, वी कांट से हॉनरेबल, वी से ऑनरेबल. सो ओ है तो ओ इज अ वोवल. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ओ इज अ वोवल. आयर, ई में ई हो गया हमारा वोवल साउंड, ई इज ऑल्सो वोवल साउंड. सो वी विल प्लेस एन ए आर्टिकल बिफोर दैट. नेक्स्ट 7th one is indefinite articles are used for job occupations. अब जो हमारे indefinite articles होते हैं हमारी job occupation से पहले भी use होते हैं. They are also used before used for the job occupations. For example, an engineer. Now we are saying an engineer. अब यहाँ पे हमने a engineer क्यों नहीं use किया? अब हम यहाँ पे an engineer की जगह पे a engineer क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? Because it have a vowel sound. अब इसमें vowel है e is a vowel. So यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? an engineer. Next is an architect. अब जो architect है वहाँ पे भी an यूज होगा because a is a vowel. An officer, o is a vowel. So an will be used. A lawyer.
अब जो लॉयर है वी कांट यूज एन लॉयर. अब यहाँ पे हम एन तो नहीं यूज कर सकते बिकॉज एल इज नॉट अ वोवल. अब यहाँ पे एल वोवल नहीं है तो हम एन यूज नहीं कर सकते. सो व्हाट वी विल यूज इंस्टेड ऑफ एन, ए, एंड ए डॉक्टर, बिकॉज डी इज ऑल्सो नॉट अ वोवल. नेक्स्ट 8th one is use of an and a before adjectives. अब हम adjectives से पहले भी क्या यूज करते हैं, a and an. अब a and an का यूज होता है बिफोर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव से पहले भी a and an का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल फोटो, एडजेक्टिव्स यूज हो गया. ब्यूटीफुल फोटो के पहले हम क्या यूज करेंगे, a, बिकॉज बी इज नॉट अ वोवल हेयर. तो अगर बी वोवल नहीं है तो a यूज होगा. अ प्रिटी ड्रेस, नाउ हेयर वी विल यूज अ प्रिटी ड्रेस, अ यूनिक प्लेस, बट वी कांट से अ अगली पर्सन. यू क्या है हमारा, वोवल है. अब यू वोवल है तो उससे पहले क्या यूज होगा, एन यूज होगा, बिकॉज यू इज अ वोवल हेयर. ई इज ऑल्सो अ वोवल, सो एन विल बी यूज्ड. एन अगली पर्सन, एन एग लेफ्ट. सो जब भी हमारा वोवल साउंड होगा उससे पहले अगर हम एक्सेप्शंस को ना देखें तो उससे पहले हमारा हमेशा एन ही यूज होगा. और जहाँ हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वहाँ पे हमारा ऑलवेज ए यूज होगा. ओके, नेक्स्ट इज आवर एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन वेयर एवर नेसेसरी. अब हमने जो भी पढ़ा है कि ए कहाँ पे यूज होगा, एन कहाँ पे यूज होगा, वी ऑल्सो हैव रेड अबाउट द एक्सेप्शंस ऑल्सो. सो हेयर वी विल इम्प्लीमेंट. रिया, यू वर, what we will use here, a और n? n. अब n क्या होगा, h तो हमारा वोवल नहीं है, बट h r में हम क्या यूज करते हैं, r. r जो हम हावर नहीं बोलते हैं, we use r. r में o is a vowel, so इसमें r में क्या होता है, एक वोवल साउंड होती है. ये हमारा एक्सेप्शंस में था कि वोवल साउंड होती है हमारी इसमें, इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, n. so Riya, you were and are late for the class. Here we will use A. A food was prepared by my mother. A food was prepared by my mother. A food कैसे आएगा, F is not a vowel. तो F vowel नहीं तो इसलिए क्या यूज होगा, A, बिकॉज ये वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है. नेक्स्ट इज प्लीज लेंड मी एन 1 rupee नोट और a 1 rupee नोट. प्लीज लेंड मी अ 1 rupee नोट. हियर वी विल यूज अ 1, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा. 1 rupee नोट, सो हियर वी विल यूज a. द टीचर गेव हिम अ इजी क्वेश्चन. नो, इट्स रॉन्ग. एन इजी क्वेश्चन is a vowel here. So the teacher gave him an easy question. The child put an egg in a basket. So ये हमारा वोवल था, इसलिए हमने प्लस, वोवल था प्लस काउंटेबल था. वोवल प्लस काउंटेबल हमारा क्या यूज होगा, एन. और ये बास्केट है तो B is a consonant, so A will be used here. Water is a necessity. A necessity, not an necessity. Starts with consonant. Next is senior citizens are and most important or are a most important. Are and. As it starts with I. I is a vowel. So senior citizens are an important members of our society. Today a hen laid eggs in the garden. Hen, अब H से स्टार्ट हो रहा है, they are not having a sound of E और O. Hen, H जो है यहाँ पे साइलेंट नहीं है, बट अगर यहाँ पे R होता तो R जो वो हावर से स्टार्ट नहीं होता, वो R से स्टार्ट होता है. सो H यहाँ पे साइलेंट होता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, N. सो हेयर वी विल यूज ओनली A. Next, Rahul was sitting
in a room when he got an idea. I हमारा वॉवल है इसलिए यहाँ पे an यूज होगा, an आर्टिकल, और and r is a consonant, so a article will be used here. Next is, last is an Indian girl. I is a vowel, so an Indian girl and an European boy. An will be used and here also an will be used. An Indian girl and an European boy got married last week. Vowel sound है, दोनों में vowel है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, an. दोनों में an का यूज होगा. क्लियर? अब indefinite समझ आ गया सबको. नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल्स. अब हमारे डेफिनेट क्या होते हैं, इनडेफिनेट तो हमने पढ़ लिया, ए एंड एन जो होते हैं. ए हम यूज करते हैं मेनली मोस्टली विद द कॉन्सोनेंट एंड एन विल बी, एन इज यूज्ड विद द वोवल्स. नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल्स. अब डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल द. अब हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है द. एज वी हैव रेड अबाउट द आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ई, ए, एन एंड द. ए एंड एन जो हमारे इनडेफिनेट हो गए, ये तो हमने स्टडी कर लिया. वी हैव ऑल्सो डन विद एक्सेप्शंस ऑल्सो. नाउ द इज आर डेफिनेट आर्टिकल. द हमारा डेफिनेट आर्टिकल. अब डेफिनेट आर्टिकल क्यों होता है द? द डेफिनेट आर्टिकल द डज पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग लाइक नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं हमारे, जो द होता है, द आर्टिकल इज यूज्ड हियर. तो जो हमारा द आर्टिकल यहाँ पे यूज होता है, तो इसमें क्या होता है कि वी रेफर्स टू एनी स्पेसिफिक, एनी पर्टिकुलर थिंग, एनी स्पेसिफिक थिंग, एनिमल, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग. सो द मून. द मून. अब हम मून को सिंपली अ मून एंड मून नहीं बोलते हैं, वो यूजुअली से द मून, द मून, द सन. सो वाई वी ऑलवेज यूज द डेफिनेट आर्टिकल वाइल वी आर सेइंग द सन और द मून. सन और मून, अर्थ के लिए भी हम बोलते हैं द अर्थ. वाई वी यूज द बिफोर दिस वर्ड्स, मून, सन और अर्थ इवन. We use the because we are referring to any specific thing. ये specific चीज़ है. How it is a specific? Now here is only one moon in the entire universe. एक ही moon है, एक ही sun है, only one earth is there. We can't say there are more than one. Means where there is a uniqueness. जहाँ पे कोई uniqueness की बात होगी, वहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, द डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा जहाँ पे यूनिकनेस है. अब सन है तो ये यूनिक है. अब यहाँ पे 2 सन तो नहीं है, सिर्फ 1 ही है. सो हियर वी विल यूज द. तो जो यूनिक चीज़ें हैं, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल. नाउ यूजेस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल्स. अब जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स को. फर्स्ट वन, व्हेन वी यूज अ नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वी यूज एन इनडेफिनेट आर्टिकल. अब जब हम कोई भी नेम है, प्लेस है, थिंग है, पर्सन है, उसको हम जब फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, फर्स्ट टाइम बोलते हैं, तो उस फर्स्ट टाइम क्या यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल. और फर्स्ट टाइम हम क्या यूज करते हैं, एन. बट व्हेन वी यूज द सेम नेम, द सेम प्लेस, द सेम एनिमल और थिंग, अब ये कॉमनली भी अगर हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम उसको एन यूज करते हैं, सेकेंड टाइम हम उसको द के साथ यूज करते हैं. लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, अ शिप सैंक इनटू द ओशन. अब देखो यहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया ए. नाउ अ शिप सैंक into the ocean, the ship was, यहाँ पे हमारा indefinite था. A and N क्या है हमारा, indefinite articles है, and the is our definite. So सबसे पहले जब हम यूज करेंगे किसी भी थिंग को, किसी भी नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ एनिमल, firstly we will start with indefinite article, then we will refer to it to definite article. पहले हमारा indefinite यूज होगा ए, इधर एन.
एंड उसके बाद हमारा सेम में क्या यूज होगा, व्हेन वी आर यूजिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम वी विल यूज डेफिनेट. डेफिनेट मीन्स द. So a ship sank into the ocean. The ship was carrying 1,000 people. We went to a place last night. The place was beautiful. A place and the place. Here you can see the difference. First time जब हमने उसको use किया, we went to a place. तो हम क्या बोलते हैं usually कि we went to a place. A place use करते हैं indefinite article, but later on we use definite article for the same place. Third one, a cat was crossing the road. A cat, name of an animal. A cat, सबसे पहले हम क्या use करेंगे, a cat, but after that we will use definite. The cat was searching for food. Now अब हम कंप्लीट सेंटेंस देखें तो वो क्या था, अ कैट वॉज क्रॉसिंग द रोड एंड द कैट वॉज सर्चिंग फॉर द फूड. जो कैट रोड क्रॉस कर रही थी, दैट कैट वॉज सर्चिंग फॉर द फूड. अ कार वॉज पासिंग बाय, फर्स्टली अ कार, आफ्टर दैट द इनडेफिनेट, आफ्टर दैट डेफिनेट आर्टिकल. द कार वॉज रेड इन कलर. अ क्लॉथ वॉज हैंगिंग इन द गार्डन. द क्लॉथ फ्लू अवे. सो जब भी हम इन सेंटेंसेस को, फर्स्ट रूल हमारा यही है, फर्स्ट यूज हमारा यही है कि फर्स्टली हम इनडेफिनेट यूज करते हैं, आफ्टर दैट वी यूज डेफिनेट आर्टिकल. फर्स्टली इनडेफिनेट में ए और एन विल बी यूज, आफ्टर दैट डेफिनेट में द विल बी यूज. क्लियर? नेक्स्ट इज, अगर नेक्स्ट यूज क्या है हमारा, वी यूज द व्हेन द पर्सन और थिंग इज क्वाइट ऑब्वियस. जब हम नेक्स्ट टाइम हम जो यूज इसका क्या है, नेक्स्ट यूज, वी यूज द आर्टिकल व्हेन द थिंग इज क्वाइट ऑब्वियस. लाइक द बॉय वॉज रनिंग लेट फॉर द क्लास. हियर वी विल यूज द. द कैब वॉज एट द एंड, वॉज एट द डोर फॉर यू. जब हम किसी ऑब्वियस चीज को बोल रहे हैं, कोई भी ऐसे, द होटल वॉज ब्यूटिफुल, द हाउस हैजंट बीन वाइट वॉश्ड फॉर लॉन्ग, द कैट वॉज प्लेइंग विद हर टॉयज. इट इज यूज बिफोर अ कॉमन नाउन्स. अब ये जो आर्टिकल्स है ये हमारे कॉमन नाउन से पहले भी यूज होते हैं. इट इज यूज बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर यूनिक इन देयर ओन वे, जो कि अपने ही वे में यूनिक होते हैं. द स्काई इज पिंक. अब जो स्काई है वो एक ही स्काई है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस कंट्री में कोई और स्काई है, दूसरे में कोई और आसमान है. नो, देयर इज ओनली स्काई. द स्काई इज पिंक. तो ये भी एक यूनिकनेस है, अपनी ही वे में जो यूनिक है. द स्काई इज ब्लू इन कलर. द स्काई इज पिंक इन कलर. द अर्थ हैज लाइफ. द अर्थ, देयर इज ओनली वन प्लैनेट ऑफ नेम अर्थ. अर्थ के नाम से सिर्फ एक ही प्लैनेट है यहाँ पे. Third is, it is said after a million years the sun will disappear from the galaxy. The sun, sun से पहले एक uniqueness जो show करते हैं, जो भी name of the thing which are showing some uniqueness, and before that words we always use the. तो उसके पहले हम क्या use करेंगे, the. The Milky Way is so beautiful. So here also we will use the for the uniqueness. इट मीन्स हम द का यूज करते हैं मोस्टली विद द, फॉर द यूनिकनेस, फॉर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स. देयर आर 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. इस पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, 7 बिलियन पीपल. सो द विल बी यूज डेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट, फोर्थ वन इज, फोर्थ यूज इज, वी यूज द विद सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी आर शोइंग समवन superior than the others. There also we will use the superlative degree. जब हम किसी को superior show कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम क्या use करते हैं, the. So we use the with superlative degree. Superlative degree के साथ भी हम the का use करते हैं, definite article का use करते हैं. बुर्ज खलीफा is the tallest building in the world. अब जो बुर्ज खलीफा है वो सबसे tallest building है वर्ल्ड में, the tallest. सुपरलेटिव, अब हमने इसको सुपीरियर बना दिया. सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, व्हेन वी आर शोइंग समवन वेरी सुपीरियर. अब यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं,
There are three kinds of degrees, positive and comparative, and third one is superlative. Positive when we जब हम पॉजिटिवली कोई चीज़ बोल रहे हैं, एक सेंटेंस, एक लाइक एन एजर्टिव, तो एजर्टिव में आ जाता है हमारा पॉजिटिव. और जो हमारी कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव में क्या होता है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं. रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, तो रिया और श्याम इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है कि हु इज मोर इंटेलिजेंट. सो रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम. सो यहाँ पे कंपैरिजन है वो कंपैरेटिव डिग्री होगी. एंड सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में व्हेन वी आर शोइंग समवन वेरी सुपीरियर, और हम वहाँ पे किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, उसको हम सबसे ऊंचा दिखा रहे हैं, सबसे सुपीरियर दिखा रहे हैं. Like Riya is the most intelligent girl in the class. So in the class there could be 30 or 35 students, but among those students only Riya is the most intelligent girl. Riya is the most intelligent girl. So here we are showing Riya a superior one. Similarly, like that, in this sentence also we are using Burj Khalifa is the tallest building in the world. We are comparing it with the world. कि वर्ल्ड से सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, बुर्ज खलीफा. सो हेयर वी विल यूज द डेफिनेट आर्टिकल. गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ये भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई. द एटलांटिक इज द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल, द एटलांटिक इज द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल. उसको भी हम ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो होटल है वो कौन सा है, एटलांटिक. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. अब जो एशिया है वो क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बता दिया हमने उसको. लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. अब लायन जो है वो जंगल का राजा होता है, वी ऑल नो एंड वी ऑल्सो हैव हर्ड अबाउट दिस लाइन. द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, कि जो लायन है वो जंगल का शेर होता है, किंग होता है, राजा होता है. तो ये हम सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम किसी चीज़ को भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इसको सुपीरियर शो कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द इज यूज्ड बिफोर रिवर्स, द इज यूज्ड बिफोर माउंटेन्स, रेंजेस, वैलीज, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, गर्ल्स, कैनल्स, डेजर्ट. कोई भी हम रेंजेस को एक्सप्लेन नाम दे रहे हैं, किसी भी गल्फ को, किसी भी डेजर्ट को, किसी भी आइलैंड को अगर हम बोल रहे हैं, व्हेनेवर वी आर यूजिंग वी विल ऑलवेज यूज विद द, क्योंकि ये भी एक यूनिकनेस है, ये यूनिक है. द यमुना, अब यमुना एक ही रिवर है, कोई 4-5 रिवर नहीं है. देयर इज ओनली वन रिवर विद नेम यमुना. यमुना नाम के साथ सिर्फ एक ही रिवर है. सो ये इनकी यूनिकनेस होती है. यूनिकनेस यहाँ पे भी दिख जाए हमें, वी विल ऑलवेज यूज डेफिनेट आर्टिकल द. सो द यमुना, द इंडियन ओशन, द कश्मीर वैली, द सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट वन है, कश्मीर वैली वन है. सो दीज आर द यूनिकनेस, कि जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ वेल नॉन बिल्डिंग्स. अब जो वेल नॉन बिल्डिंग्स होती हैं, जो ऐसा नहीं है कि वो हमारा घर है, जैसे हमारा घर है जो कि मीन्स वी कैन से कि जो एक हमारा घर है वो कॉमन हो गया. अब हमारे जैसे घर कितने होंगे हमारे, चलो हम अपने लोकेलिटी की ही बात कर लें, तो हमारे लोकेलिटी में कितने सारे वैसे घर होंगे, अपनी कॉलोनी में कितने घर होंगे, वैसे कॉमन हो गया. लेकिन यहाँ पे उन बिल्डिंग्स की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पे एक कॉमन बिल्डिंग की बात नहीं करी जा रही, इवन किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात करी जा रही है जिसमें कोई यूनिकनेस हो. जैसे द लीनिंग पावर ऑफ पिसा, द रेड फोर्ट, जो कि हमारे इंडिया में ही है. रेड फोर्ट जो है वो हम ये कह सकते हैं कि रेड फोर्ट एक ही है, इंडिया में रेड फोर्ट एक ही है. वी कांट से रेड फोर्ट एक दिल्ली में है, रेड फोर्ट एक हरियाणा में भी है. नो, रेड फोर्ट जो है एक ही है इंडिया में. इंडिया गेट जो दिल्ली में, इंडिया गेट भी वन है, आईफिल टावर भी वन है, द गेटवे ऑफ इंडिया. सो इट मीन्स जहाँ पे ये भी, अगर हम किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग्स को नेम दे रहे हैं, सो वी विल ऑलवेज यूज विद डेफिनेट आर्टिकल द. तो उसको भी हम डेफिनेट आर्टिकल्स द से यूज करेंगे फॉर द वेल नॉन बिल्डिंग्स. नेक्स्ट इज द इज यूज बिफोर होली बुक्स. जितनी भी होली बुक्स होती हैं,
उनके पहले भी हम क्या यूज करते हैं, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द भगवद गीता, द आदि ग्रंथ। तो ये भी हमारी एक यूनिकनेस होगी इनमें कि अब जो बाइबल है वो एक ही है, एक से ज़्यादा बाइबल तो नहीं है, बाइबल इज ओनली वन बुक। सो इन बुक्स के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, द, डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज इफ इट कंटेन्स द कॉमन नाउन। अब नेम ऑफ द कंट्रीज, जैसे हम अगर यूएसए बोलते हैं तो वो अगर हम उसको पूरा, जब हम पूरा उसको नेम देते हैं तो कैसे बोलते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शॉर्ट फॉर्म जब हम यूएसए होता है तो जब हम, ये तो हमारी होगी यूएसए, बट इट स्टैंड्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी कांट सिंपली से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नो, it always starts with the United States of America, the United Kingdom, UK, the United Kingdom, the United States of Emirates. So here also we will use definite articles. Next is the is used before collective nouns. अब जो collective nouns हैं उससे पहले भी हम क्या यूज करते हैं, the। collective nouns क्या होते हैं, जिनको हम collect कर सकते हैं। The cow is worshipped in India. जो काउ है उसको वर्शिप किया जाता है इंडिया में, माना जाता है, पूजा जाता है। सो द काउ, यहाँ पे हम एक ही काउ की बात कर रहे हैं। द आर्मी वेंट टू वार टुडे, द क्लास, द बीज, द ब्लाइंड अराउज सिंपथी। ये कलेक्टिव हैं, इनको हम मीन्स इनको काउंट कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ समथिंग। द क्लास, द बीज, द ब्लाइंड अराउज सिंपथी। अब जो बीज हैं उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि 1 होंगे 2 बीज होंगे, कलेक्शन ऑफ समथिंग। जो कलेक्टिव नाउन्स हो गए उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट इट इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स। अब ऑर्डिनल से पहले भी यूज होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून, कि वो जो फर्स्ट मैन था जिसने मून पे लैंड किया था, कौन था वो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो फर्स्ट टाइम मून पे गया था। साइना नेहवाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू साइना नेहवाल वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स जो जीतने वाली फर्स्ट वुमेन थी वो कौन थी, साइना नेहवाल। सुष्मिता सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड। जो पहली हमारी इंडियन मिस वर्ल्ड थी वो कौन थी, सुष्मिता सेन। जो पहली चीज़ है, फर्स्ट जो चीज़ आ गई वो हम किससे रेफर करेंगे, द आर्टिकल से, मीन्स डेफिनेट आर्टिकल से। जैक मा इज द फर्स्ट बिलियनर इन द एशिया, ये भी फर्स्ट हो गया। द बॉय इन द 5th रो वॉज नॉट वेल। अब हम इसको भी कर रहे हैं कि वो जो 5th रो में जो बॉय बैठा है इज नॉट फीलिंग वेल। The is used before phrases like only, like last और next। अब कुछ phrases होते हैं हमारे जो only जिसमें होता है, last होता है, next होता है, उसके लिए भी हम the का use करते हैं। Please call the next boy, जो यहाँ पे भी हमारे यूज होते हैं। next किसी पर्सन को जब हमने रेफर करना है तो क्या बोलेंगे, please call the next boy। हम ये नहीं बोलेंगे please call a next boy और please and the next boy, no, please call the next boy। Second is the only way out is to call the police। मयंक is sitting on the last bench, कि मयंक जो कहाँ बैठा है, लास्ट बेंच पे। Before the names of the newspaper, अगर हम न्यूज़पेपर देख लें तो न्यूज़पेपर के नाम से भी पहले क्या यूज होता है हमारा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स, द ट्रिब्यून। सो नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर से पहले भी हमारा डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, द आर्टिकल यूज होता है। नेक्स्ट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन मीन्स वेयर नॉट टू यूज द आर्टिकल्स, जहाँ पे हमारा आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। ओमिशन, वी शुड नॉट यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन्स। अब हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स को यूज नहीं करेंगे। लाइक संडे, वी कांट से द संडे, संडे तो हर वीक आता है, तो इसमें कोई यूनिकनेस नहीं हुई, सो इसमें हम कहीं द का यूज नहीं करते प्रॉपर नाउन से पहले। द इज अ प्रॉपर नाउन बट वी कांट यूज द बिफोर दैट। रश्मि,
कोलकाता, दीज आर प्रॉपर नाउन्स, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग. अच्छा, अब तो इसकी ना कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, लाइक हियर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल. अब इस रूल की भी कुछ एक्सेप्शंस होंगी जहाँ पे ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल द पंजाब, द यूएसए, यूएसए के साथ हम क्या करें, द यूएसए, द यूके, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द डेक्कन. सो ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, द. वी शुड नॉट यूज द बिफोर सब्जेक्ट्स एंड आर्ट्स. अगर हम सब्जेक्ट को बोल रहे हैं तो वी कांट से द हिस्ट्री और द फिजिक्स, द मैथ्स, नो. सो वी कांट यूज बिफोर सब्जेक्ट्स एंड आर्ट्स. आई डोंट लाइक पेंटिंग, इसके लिए हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे. आई एम रीडिंग बुक ऑफ साइंस, तो हम सब्जेक्ट के पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे. When we use abstract nouns in general sense, we omit the. For example, honesty is the best policy, health is wealth. Health is wealth में हम the का use नहीं करते हैं, and honesty is the best policy. इसमें हम the आता है हमारा. Next is fill in the blanks with a, and, or, the. I want to ask a question now. It is a nice day today. Mohini works in the office. A man was crossing the road. She works in a factory. There is the huge statue of Rani Lakshmibai at the square. Yours is an inspiring story. Starts with a vowel sound. Where is a Statue of Liberty situated? He belongs to a different school of thought. Do you know where the library is? कोई specific चीज़ आ गई तो the का use करेंगे. Now each of the following questions, there are 3 sentences given, out of which one is wrong according to the usage of articles. पिक आउट द रॉन्ग वन इफ एनी. अब हमने इनमें देखना है कि एक सेंटेंस कोई सेंटेंस होगा जिसमें आर्टिकल्स का रॉन्ग यूजेज होगा. मिस्टर शर्मास डॉटर इज एन एयर हॉस्टेस. अब यहाँ पे एन का यूज हुआ है बट ए इज अ वोवल, सो दिस सेंटेंस इज राइट. देयर इज अ बिग होल इन दैट वॉल. अ बिग, ओके, ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो ओके. एन मैन, अब यहाँ पे करेक्शन है, एन नहीं आएगा, अ मैन. Here only a will be used because m is a it starts with the consonant. So correction होगी हमारी third sentence में a is used instead of an. In second one, an earth, no, here is some uniqueness. We are referring to some specific thing. So the earth is a beautiful planet. Rest of the sentences are okay. Third one is she ordered a bag online. Okay. The 4 persons came yesterday also. The 4 persons, okay. I know you have got the pair of new shoes. A pair, no. The a will be used instead of the. Fourth one, give me an sheet. No, give me a sheet. Give me a sheet of paper. Does she have a pencil? The book fair was very nice. So here is the correction. Give me a pencil. A is used instead of an. Fifth one, a new film will be releasing this Friday. The cow is a milk animal. The tea is my favorite drink. No. No article will be used here. Before tea. Tea से पहले कोई भी article use नहीं होगा. So tea is my favorite drink. Next one, there is a telephone on the table. Ranjan is, यहाँ पे भी article का use नहीं होगा. No article will be used here. The sky is full of stars today. Okay. Seventh one, many poets have made the moon a synonym for love. Okay. It is also a symbol. All right. We should not spread rumors. Rumors will not use. Is not used here. A use नहीं होगा, so no article.
Last one, on that day. On that day he didn't have money. उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे. He didn't have money. So A will be not used. So A will not use, it means no article will be used in this sentence. No article. Rest is okay. So thank you, that's all for today. Today we have done articles, kind of articles, definite as well as indefinite articles, rules of using the definite and indefinite articles. Later on we learned about omission of articles, and after that some test was there. We have done where to use a, and, or, the. So that's all for today. Thank you.